Hello, Mariam. है क्या मरियम? आवाज़ आ रहा है? हेलो। जी सर। अच्छा। तो so today we will discuss about osmosis and diffusion. So these are the two terms which are very much important as far as our different topic is concerned. How the process is going on in plant, animals, and different. There is a living organism. So here there is a first diffusion. So diffusion is the movement of particles, atoms, ions or molecules from a region in which they are in higher concentration to the region of lower concentration. Down its concentration gradient from higher to lower, that is called as a diffusion. A good example of diffusion is a food coloring. If you place a drop of red food color in a beaker of water, eventually the entire beaker of water will have a red tint. The food coloring movement through the water until it was equally distributed throughout the beaker. Diffusion takes place along a concentration gradient. A concentration gradient exists until the diffused substance is eventually distributed. इसमें क्या होता है कि अगर एक बीकर में पानी है और ऊपर से अपन एक कलर डाल दिए, ऊपर से एक ड्रॉप कलर या समझो इंक डाल दिए, इंक, तो इंक क्या हो जाती है, पूरे देर इज बीकर के वाटर में देर इज डिजॉल्व हो जाती है और पूरा इंक का कलर तैयार हो जाता है. तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन. फ्रॉम देर इज ए हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, इंक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये पूरा उसमें मिल जाएगा कलर. तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, इसको बोलेंगे डिफ्यूजन. तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में देर इज the attract hona, that process is called as a there is diffusion. Here see, these are the particles or atoms which are on the higher concentration, and here there is a particles which are low concentration. So these are the movement is in this manner. ये टाइप का मूवमेंट होता है इसमें, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन. तो सी है, ये पहली वेल है डिफ्यूजन ऑफ वन सोल्यूट. एक सोल्यूट का डिफ्यूजन बताया वाला है इसमें. ये इधर इधर एक मेम्ब्रेन है बीच में और इधर 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 वाटर है और इधर ये पार्टिकल्स है. So these are there is a higher concentration solution. This is there is a move to this is a lower concentration solution. यहाँ पे lower concentration जा रहा है and they are reaches to the equilibrium. जब दोनों एक जैसे नहीं होते, जब तक ये there is a solution ऐसा मिलते रहता है. So that is called as a diffusion of one solute. And here in the next diagram, दूसरे diagram में आप देखेंगे तो इसमें एक जो देर इज ये दीवाले सोलूट दीवाले आइटम्स दीवाले, इसमें देर इज ये मेम्ब्रेन है और ये दो मेम्ब्रेन में से देर इज रप्चर होके देर इज दीज सोल्यूट्स आर देर इज मिक्स एंड दे आर गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये देख लीजिए
इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, और देर इज अ, so these are the blue colors, sorry, there is a this yellow colors are there here, and this is they are comes here also and here also. तो ये यहाँ पे तीन आ गए, यहाँ पे तीन आ गए, ये there is a छः थे, तो दिस इज there is a equilibrium diffusion of two students. जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होता, जब तक there is a ये मिलते रहता है, तो दिस इज a transformation of there is a material, or there is a transformation of solute from higher concentration to lower concentration, उसको बोलेंगे there is a diffusion. और दूसरा एग्जांपल है, अदर एग्जांपल्स ऑफ दिस की द sugar will diffuse through a tea until the entire cup of tea is sweet. जब तक अपन there is a stir the tea to speed up the diffusion. एक चाय के इसमें अपन थोड़ी सी शक्कर डालते हैं, शक्कर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और नीचे का देर इज कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो देर इज अगर अपन उसको स्टीर करते रहे, हिलाते रहे, तो और पूरी देर इज चाय मीठी हो जाती है. तो दिस इज अगेन another example of there is a sugar and there is a tea. Another is the odor of food cooking diffuses throughout the kitchen. If you open the kitchen door, it will spread into the next room. जब खाना पकाते रहते, बिरयानी पकती रहती किचन में, अगर उसका डोर अपन ओपन करें तो देर इज पूरे घर में उसकी देर इज खुशबू आती रहती है किचन की. तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए देर इज अ डिफ्यूजन हो रहा उसका, देर इज अ फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू देर इज अ लो कॉन्सेंट्रेशन, पूरे रूम में देर इज अ स्मेल जा रही है. दिस इज द another example. Again there is a last example is the smell of agarbatti diffuses from one corner to the entire. अपन एक अगरबत्ती अगर लगाए एक कोने में, तो देर इज वो पूरे एंटायर रूम में देर इज पूरी अगरबत्ती की खुशबू फैलेंगी. तो दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे, और देर इज वो कॉन्सेंट्रेशन हल्लू हल्लू धीरे 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 पूरे रूम में फैल जाता है. तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन. ऐसा होता है कि देर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता. देन द अनदर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड इंटरिंग द स्टोमेटा ऑफ लीव्स. तो जो स्टोमेटा है लीव्स के ओपनिंग से, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है एटमॉस्फेयर में का, जो एटमॉस्फेयर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है और स्टोमेटा में कम रहता है, तो ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर सक होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के वास्ते. वाटर रूट में से आता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर से आता है, और इस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है और ग्लूकोज फॉर्म होता है और ऑक्सीजन बाहर आता है. ऑक्सीजन भी बाहर आने की प्रोसेस एक डिफ्यूजन है. ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग आउट फ्रॉम द स्टोमेटा एंड लेंटिसिल ऑफ द लीव्स. तो वहाँ से आप अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता, फोटोसिंथेसिस की वजह से ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट तैयार हो जाता अंदर, और वहाँ से बाद में बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, तो इस वजह से ऑक्सीजन क्या आता है, बाहर आ जाता है. फ्रॉम देयर इज अ हाई लेवल टू द लो लेवल. दिस इज इनहेल और एक्सहेल जो प्रोसेस है अपना, कार्बन डाइऑक्साइड देर इज प्लांट लेते अंदर और ऑक्सीजन एक्सहेल कर देते. तो लाइक वाइज एनिमल्स क्या करते, देर इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते और इनहेल करते देर इज ऑक्सीजन. तो ये जो प्रोसेस है ये एक देर इज डिफ्यूजन का प्रोसेस है. समझ में आ रहा है? तो दिस इज देर इज प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. Then these are the another examples of this diffusion. Gas into liquids होता है, diffusion of ammonia into the air, ये एक एग्जाम्पल है. लिक्विड इन टू लिक्विड, दो लिक्विड है और देर इज हायर कॉन्सेंट्रेशन का लिक्विड और लोअर कॉन्सेंट्रेशन का लिक्विड, ये जो मिक्स करते हैं, तो डिफ्यूजन ऑफ अल्कोहल इनटू वाटर, ये देर इज मिक्स हो जाता प्रॉपरली. देर इज शराब में पानी मिला के पीते लोग, तो दिस इज द एग्जाम्पल. एंड देन सॉलिड इनटू गैस, स्मोक, स्मोक दे धुआं जो निकलता, सॉलिड जो लकड़ी है या सिगारेट है या बीड़ी है, इसका जो धुआं निकलता पहले सॉलिड रहता है, उसको देर इज उसमें से स्मोक निकलता. तो ये क्या है, देर इज डिफ्यूजन का प्रोसेस है. हाई कॉन्सेंट्रेशन टू देर इज लो कॉन्सेंट्रेशन. लिक्विड इनटू गैस, देर इज अ क्लाउड, क्लाउड बन जाते इसमें.
liquids, or solid into liquid. So there is a sugar, diffusion of sugar into water. शुगर को पानी में डाले तो उसका देर इधर ये हो जाता है, डाइल्यूट हो जाती है वो देर। देन गैस इनटू लिक्विड, गैस का लिक्विड में हो रहा है, तो इधर फोम, फोम बोलते तो इधर जब धोते वक्त साबुन ये वो निकाल ये करते हैं अपन कपड़े धोते वक्त देर इधर जो गैस है वो देर इधर लिक्विड में देर इधर फोम में तब उधर। दिस इज द another example. Then gas into solid, the precious stones, बहुत सारे पत्थर से वो देर इज अ सॉलिड बन जाते हैं, उसमें देर इज अ गैस भर जाते हैं। तो ये देर इज अ एग्जाम्पल्स है देर इज इसके डिफ्यूजन। देन इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट्स, प्लांट में क्या इंपॉर्टेंस है देर इज डिफ्यूजन का। So there is a one is a passive salt absorption. Diffusion plays a significant role where ions are absorbed by the simple process of diffusion. जो रूट सिस्टम है, रूट में एब्सॉर्ब करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के, डिफ्यूजन से देर इधर डायरेक्टली अंदर कैच कर लेता है देर इधर आयन्स, प्रोटॉन्स, देर इधर डिफरेंट absorption is carried out by the root system, that is called as the passive salt absorption, वो अपन देखने वाले हैं। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से अंदर आ जाता है। देन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल over short distance, diffusion plays an important role. Translocation of food means there is a plant में फूड प्रोसेस होता है, देर इज पर्टिकुलरली ल्यूज में क्लोरोप्लास्ट रहती है, लाइट लाइट लेता हो फूड, देर इज वाटर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और देर इज फूड तैयार होता है। वो फूड मटेरियल दूसरे पार्ट्स को, ब्रांचेस को, और देर इज अ लोअर पोर्शन, देर इज अ स्टेम है, रूट है, यहाँ पे देर इज अ ट्रांसफर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। देर इज अ जब ग्लूकोज तैयार होता है, कार्बोहाइड्रेट तैयार होते हैं, तो क्या हो जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है लीफ में का, और वहाँ से डिफ्यूज होने चालू होता है पूरे पार्ट्स में, एंटायर प्लांट में देर इज अ फूड देर इज अ सप्लाई होता है। देन diffusion of water vapor from the interstellar spaces into outer atmosphere through open stomata in stomatal transpiration। तो डिफ्यूजन की वजह से देर इज अ ट्रांसपायरेशन प्रोसेस भी एक डिफ्यूजन का पार्ट है। जो स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा, टाइप ऑफ स्टोमेटा देखे अपने, स्टोमेटा ओपन कैसे होते, जब पानी बाहर जाता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, तो वो एक डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, क्योंकि इधर अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है और पानी वो बाहर चले जाता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन। so this is the a process, right? A short note stomatal transpiration, it is one of the a process of diffusion। आप ये एक पॉइंट अंदर अंदर मेंशन कर सकते हैं। then exchange of gases in the process of photosynthesis and respiration through the stoma occur simultaneously through the process of independent diffusion। अभी अपन ने जस्ट डिस्कस करें कि फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में जो एक्सहेलिंग और इनहेलिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस ये क्या होते दोनों कि एक ऑस्मोस इधर इधर डिफ्यूजन के प्रोसेस से वह अंदर और बाहर जाते हैं गैसेस। तो दिस इज a type of a diffusion process in which what is happening, there is a हेलो हेलो जी सर। हाँ है ना कनेक्ट, हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक। तो देन
देन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर अगर है तो डिफ्यूजन इंक्रीज है, अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी टेम्परेचर ये डिफ्यूजन प्रोसेस ज़्यादा होता है। देन डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, rate of diffusion increases with the steepness of the diffusion pressure gradient। अगर ज़्यादा स्टीफनेस है, उतार ज़्यादा है तो भी देर इज फास्ट देर इज डिफ्यूजन होते रहता है एज कम्पेयर टू देर इज इफ हिली और देर इज माउंटेनस देर इज रीजन। स्टीफनेस जो उतार की तरफ ज़्यादा डिफ्यूजन होते रहता है। देन concentration of number of diffusing particle is greater, then diffusion pressure deficient will be greater। then chemical nature of diffusing substances और chemical nature of diffusing substance पे भी there is a वो depend है। So these are there is a factors which increase or decrease the diffusion rate। then the osmosis, osmosis there is a quite opposite from the diffusion, diffusion से थोड़ा सा ये opposite है। तो व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑस्मोसिस, क्या होता है कि when two solutions of different concentration are separated by a means of semi permeable membrane, the diffusion of water or the solvent takes place from the solution of low concentration to the solution of higher concentration until the state of dynamic equilibrium is attained। तो यहाँ पे उससे रिवर्स होता है, यहाँ से वहाँ पे क्या होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर आता है और यहाँ पे लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाता है। बट हेयर देर इज ए मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो दिस इज देर इज ए कंडीशन हेयर एंड इट इज अ रिवर्स फ्रॉम दैट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से रिवर्स है। तो सी है दिस इज ए मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे मस्ट है। and see here this is a low sugar concentration and it is a higher sugar concentration and this is a flow of solvent or there is a liquid from low concentration to higher concentration। वहाँ पे हायर से लोअर जा रहा था और ये मेम्ब्रेन का देर इज कोई इसमें देर इज रोल नहीं था, यहाँ पे रोल है। तो देर इज मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड and here this is the this green color, these are the sugar particles and these are the water molecules। so this is a दिस कंसंट्रेशन इज मोर, शुगर रहने की वजह से यहाँ पे देयर इज अ कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो दिस अ लो कंसंट्रेटेड शुगर इधर इज अ वाटर इज मूव टू द हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन में देयर इज इसका ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस इज देयर इज अ हैपनिंग इन दिस देयर इज अ ऑस्मोसिस। सी ऑस्मोसिस में ये प्रोसेस होता है क्वाइट रिवर्स फ्रॉम देयर इज अ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से रिवर्स होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल अपने को प्रैक्टिकल में करने का है जो कि अपन उसको ऑस्मोसिस क्लियरली देख सकते हैं। तो ये एक बिकर लेंगे आप, बिकर में एक देर इधर ये पोटैटो है, पोटैटो को ये फॉर्म में कट करे वाला है, वो पोटैटो को पील करने का है, उसके देर इधर स्किन बाहर निकाल देने की और एक अंदर बीच में ऐसी कैविटी फॉर्म करने की, कैविटी फॉर्म करके उसमें क्या डालने का है, एक शुगर सोल्यूशन डालने का, शुगर सोल्यूशन। और शुगर सोल्यूशन डाल के इसको देर इधर अपना पिन मार के रखने का, जहाँ तक शुगर सोल्यूशन डाले आपने वहाँ पे ये पिन उसको देर इधर उसका इनिशियल मार्क, फाइनल जो मार्क है उसका वहाँ पे डालने का। और नीचे सादा वाटर बीकर में कौन सा रहेगा, एक प्लेन वाटर जो है टैप वाटर आपको। और ये जो पोटैटो को आलू को अपन ये सादे पानी में रखेंगे, उसके अंदर शुगर सोल्यूशन है। और उसके बाद उसको 1 घंटे के बाद आप देखेंगे तो क्या होता है कि देर इज ए फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम दिस लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये बाहर का पानी ये आलू में से अंदर जाके ये देर इज ये शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर इधर इधर लेवल, शुगर का लेवल ऊपर बढ़ जाएगा दिखेंगे। So this is a demonstration of osmosis by a potato osmoscope, osmoscope, potato osmoscope। ये देर इज a simple practical ये आप करने वाले हैं। देर इज प्रैक्टिकल चालू होने के बाद कि देर इज शुगर सोल्यूशन अंदर डाल के वाटर में रख दिए तो ये फ्लो होता है। दैट इज द ए प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, लो से हाई जा रहा है तो जिसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो हियर ये भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है, इधर का लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से ये इधर गया।
तो हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मूव हुआ. तो दिस इज देयर इज अ हैपनिंग. तो दिस इज ए मेम्ब्रेन है और ये मूवमेंट हो रहा है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से. तो ये प्रोसेस इज अनदर एग्जाम्पल. So another examples of this osmosis, जो रूट से वाटर अंदर आता है देर इज अ प्लांट में, ये एक देर इज ऑस्मोसिस है. कैसा कि देर इज जब फूड तैयार होता है लीफ में, वो लीफ में का फूड जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, शुगर है, वो पूरे प्लांट में बॉडी में जाता है, जरिए स्टेम में जाता है, रूट में जाता है. और जो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन है रूट में का ज़्यादा हो जाता है और बाहर का पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है. तो ये क्या हो जाता है, सक कर ले जाता है देर इज वाटर. तो रूट एब्सॉर्ब करते वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के जरिए देर इज वाटर एब्सॉर्ब करते रूट सिस्टम. जो भी प्लांट है वो क्या करता है, देर इज एब्सॉर्ब कर लेता है. तो जब भी अपन देखें कि देर इज पोटैटो के अंदर अपन अगर शुगर सोल्यूशन डाले तो बाहर का पानी अंदर आया, वैसा रूट में भी शुगर सोल्यूशन रहता और बाहर पानी सादा रहता. खारा रहो या इधर मीठा भी रहा तो उतना मीठा नहीं रहता जितना अंदर का रहता, तो उससे अब्सॉर्ब कर लेता. तो दिस इज देयर इज हैपनिंग. जस्ट लाइक ए स्पंज है अपना, स्पंज को अपन पानी में रख दे तो क्या होता है, बाहर का पानी अंदर खींच लेके बल्कि हो जाता है. तो वैसा देयर इज ये रूट सिस्टम भी क्या हो जाते हैं, देयर इज बल्कि होते बाहर का पानी खींच के और वो ऊपर लिफ्ट कर देते वाटर को. So this is there is a method of absorption of the water by the root system by the process of osmosis. Osmosis के जरिए वाटर अंदर आ जाता है. और there is a absorption of water by alimentary canal, stomach, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द कोलन. ये भी इधर इधर प्रोसेस है. जब अपन पानी पीते हैं तो ये पूरे वो जो पार्ट्स है अपने बॉडी के, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और कोलन है, ये इधर इधर एब्सॉर्ब करते हैं. अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है उनका और ये पानी एब्सॉर्ब कर लेते हैं. और देर इज दे रिक्वायर्ड देयर रिक्वायरमेंट, वो उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल करते. तो दिस इज देर इज ये है प्रोसेस देर इज ऑस्मोसिस के जरिए. देन mechanism of osmosis. Osmosis का mechanism, osmosis the diffusion of water across a selective permeable membrane. Then direction of osmosis is determined only by the difference in total solute concentration. Water diffusion across membrane from the region of lower solute concentration to the region of higher solute concentration. ये प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस में. और देर इज द टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस. दो टाइप के ऑस्मोसिस होते. पहला है एंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस. ये बता एंडो ऑस्मोसिस. एंडो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि देर इज इफ द सेल is placed in a hypotonic solution, the water from outside will enter into the cell, which is known as endoosmosis. The cell is now turgid and example is resin. तो ये क्या होता है, hypotonic. If the cell is placed in a hypotonic solution, एंडो ऑस्मोसिस होना तो देर इज बाहर का पानी अंदर आ जाना, उसको बोलेंगे एंडो ऑस्मेटिक. और देर इज सेल बिकम टर्जिड. टर्जिड हो जाना, फुल जाना, फुल जाना, तो बाहर का पानी अंदर आना, तो उसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस. जैसे कि अभी अपन बोले कि स्पंज को अगर पानी में रखे तो वो फुल ऑफ वाटर हो जाता है, टर्जिड हो जाता है. तो ये देर इज एक प्रोसेस है. देर इज रीजिन. रीजिन में तो देर इज किशमिश को अपन पानी में रखे तो वो क्या हो जाती, फुल ऑफ वाटर हो जाती और वो क्या हो जाती है, बल्कि हो जाती. और देर इज उसमें वाटर है. अंगूर के वैसे दिखता वो. किशमिश को अगर अपन पानी में रखे, किशमिश की चपटी सूखी रहती और उसको अगर पानी में रखे आपने 2 घंटे के वास्ते तो क्या हो जाता है, वो अंगूर बन जाता है. उसमें बाहर का वाटर अंदर जाता है. एंडो अंदर आना, तो किशमिश का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता, अंदर शुगर रहती और बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन कम रहता, तो देर इज वाटर अंदर आता है और वो क्या हो जाती है, टर्जिड बन जाती है. फ्लैसिड की टर्जिड उसका अपोजिट. तो देर इज अ फुल ऑफ वाटर, देर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर, फ्लैसिड कंडीशन बोलते हैं उसको. तो ये देर इज अ प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस. तो पोटैटो ऑस्मोस्को का भी देर इज एंडोऑस्मोसिस हो रहा है.
शुगर सोल्यूशन है, अपन पोटैटो में अंदर काट के उसमें एक कैविटी बना रहे, एक सुराख बना रहे और अंदर शुगर रख रहे, तो बाहर का पानी अंदर आता है। तो ये देर इज इसमें भी क्या है, शुगर है किशमिश में, रेजिन में, तो वो बाहर का पानी अंदर सक कर लेती। सीड में भी रखे अपन, मटकी रखते या फिर चने रखते पानी में, तो क्या होता है पानी अंदर देर इज आ जाता है, तो दिस इज टर्जिट बन जाते हो। तो दिस इज देर इज अ प्रोसेस ऑफ देर इज अ एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं, एक टाइप ऑफ ऑस्मोसिस है। और दूसरा है एक्सोऑस्मोसिस, उसके अपोजिट है, इसमें से वाटर बाहर निकल जाता है। इफ द सेम सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक बोले तो देर इज बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहना, या देर इज एक्सोस में हाइपो हाइपो और हाइपर दो है अलग अलग। हाइपो बोले तो बिलो, हाइपो बोले तो बिलो, हाइपर बोले तो ज्यादा, अपोजिट है। ईपी बोले तो अबो, हाइपो बोले तो बिलो, पेरी बोले तो सराउंडिंग। हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर, वो फ्लावर के टाइप पे दे इधर, इसको याद रख सकते हैं आप। तो हाइपर बाहर का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाइपर यहाँ पे कम है, किशमिश में ज़्यादा है और बाहर का पानी सादा है, तो हाइपो बिलो है वहाँ का कॉन्सेंट्रेशन। जैसे आलू में पे अपन शक्कर रख रहे, शक्कर का पानी रख रहे, तो कॉन्सेंट्रेशन अंदर का ज़्यादा है और बाहर का कम है। आउटर सेल का दर इधर हाइपो है, बिलो है, और यहाँ पर हाइपर है, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। So if the same cell is placed in a hypertonic solution, the water from the cell will come out into the external solution, which is known as exoosmosis. उसको बोलते हैं there is a plasmolysis. For example, अगर अपन ने एक सेल को, प्लांट सेल को अगर देर इज अ शुगर सोल्यूशन में रखे, शुगर सोल्यूशन में रखे, तो उसमें क्या हो जाता है कि देर इज जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म है, वो सेल वॉल छोड़ के एक बॉल के वैसा बन जाता है, गोल बन जाता है, जिसमें से कि जो पूरा ये एग्जॉस्ट हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है वो, और देर इज उसमें का वाटर बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं देर इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मो बोलते तो प्रोटोप्लाज्म, और लाइसिस बोलते ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन हो जाता है प्रोटोप्लाज्म का और साइटोप्लाज्म का, और बॉल बॉल कैसा हो जाता है। उसके एग्जांपल्स अपन यहाँ पे देखने वाले पिक्चर। तो दिस इज द, उसको ये बोलेंगे प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस, पानी बाहर निकल जाना, फ्लैसिड हो जाना, और देर इज अ रिमोल हो जाना, वाटर डिहाइड्रेटेड हो जाना सेल, और उसको और देर इज अ नॉर्मल वाटर में डाले तो क्या हो जाता है, वो जैसा का वैसा हो जाता है, और देर इज अ वाटर अंदर आ जाता है, जो पानी वाटर बाहर चले गया वाला। तो दिस इज देर इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस। ये दोनों अपोजिट है, पानी अंदर आने को क्या बोलेंगे, एंडोऑस्मोसिस, पानी बाहर निकल जाने को एक्सोऑस्मोसिस। but if the cell is kept in isotonic solution, there will be not the be in entry or exit of the cell। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये दो टोनिसिटी है। ये आइसो बोले तो सिमिलर, जब अगर सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन रहेंगे बाहर का और अंदर का, तो पानी इक्वल, कहीं भी अंदर नहीं जाएगा बाहर नहीं जाएगा, इक्वल रहेगा। अगर अपन ने शुगर सोल्यूशन बनाए और आलू के अंदर भी उतना शुगर सोल्यूशन रखे और बाहर भी शुगर सोल्यूशन रखे, तो क्या होगा, पानी अंदर रहेगा ना बाहर जाएगा, जैसा का वैसा रहेगा, तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। सिमिलर सोल्यूशन रहेगा दोनों तरफ, hypo below, hyper there is a more concentration outside, from inside to the outside, ऐसा। तो there is a, these are the figures of there is a animal cell and plant cell। ये देखो ये एनिमल सेल है, देर इज अ ब्लड सेल एनिमल सेल है, और ये प्लांट सेल है। तो ये इसमें क्या हो रहा, ये हाइपोटोनिक है, हाइपो बाहर का यहाँ से कम है पानी, देर इज अ कॉन्सेंट्रेशन, तो बाहर का पानी अंदर आया, तो ये क्या होगा, टर्जिड होगा। टर्जिड बोलते तो फुल ऑफ वाटर, बाहर का पानी अंदर आया, H2O इंटर्स, यहाँ पे भी बाहर का पानी आया, अंदर आया, और देर इज अ, ये इतना पानी अंदर आया कि ये जिस रेड सेल ब्रस्ट ब्रस्ट हो गया और ये पानी एकदम फूट गया हो, वो देर इज अ बॉल के वैसा। अपन बलून में अगर पानी भर दिए फुल तो क्या हो जाएगा, तो ये पूरा फूट जाएगा, ये देर इज प्रोसेस हो जाएगा। तो ये देर इज ये नॉर्मल नॉर्मल है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, अंदर जाएगा ना पानी बाहर जाएगा, तो ये देर इज। और ये अगर बाहर का पानी हाइपरटोनिक, बाहर का सॉल्यूशन ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में अगर रखे अपन ब्लड सेल को, तो ये क्या श्रिवेल्ड हो जाएगा,
इसमें का वाटर पूरा बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा पूरा प्लाज्मोलाइज। ये प्लांट सेल भी ऐसा प्लाज्मोलाइज है, पूरा वाटर बाहर निकल जाएगा और ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये कैसा होगा बॉल कैसे होंगे, ये देख रहे हैं आप बॉल कैसे। यहाँ पे कैसा है देर इज पूरा फुल ऑफ देर इज टर्जिड है, यहाँ पे पूरा कम हो जाएगा। तो ये देर इज विथ a diagram of animal cell and plant cell when the solutions are there is a different concentration isotonic similar है, अगर बाहर का कम ज़्यादा है तो ये प्रोसेस हो जाएंगे उसमें। तो ये देर इज हेलो जी सर। हाँ, तो अटक क्या बेटे, और टाइम हो गया है कितने बजे, आधा घंटा हुआ। हाँ सर, हाफ और होगा। हाँ, तो ये हाँ अटक गया, इसका टाइम लिमिट हो गया है। तो ये प्रोसेस से अच्छा। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये जो प्रोसेस है, एक में फ्लो ऑफ वाटर होता है, लो कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो और इसमें स्लाइड है, इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, और वो डिफरेंस रह गया अपन देयर इज टुमारो वी विल सी देयर इज हाउ द डिफरेंस इन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, और क्या क्या डिफरेंस है 4-5 पॉइंट में वो अपन कल देखें। ओके। Any question from regarding this? नो सर। Okay, okay. Thanks.